Welcome back from Mentor English. Myself, motivational speaker, leadership business coach, master trainer, language trainer, vlogger, novelist, Professor M. Raza. Today, we are going to discuss as a model lesson, page number 11, PTB, Punjab Text Board, class 8th or pre-9th, English, and page number 11. Pre-reading strategies. Now first I'm going to give you the model lesson or model spoken or model narration or particular verbal schemes and secrets or tricks. Pre-reading. Look at the title of the unit and the given illustrations to predict what the text is about. Point 2, it was point 1. Point 2, do you think we should be helpful to others? Do you think we should be helpful to others? So in the first point 1, the answer should be that there is a hut, there is a old man, and there is a weather problem. In point number 2, the answer is yes, but not only yes. After comma, you need to give or you need to offer or you need to write down a particular sentence. Even in the questioning form, you can change this interrogative sentence into a imperative or declarative sentence. For example, yes, we think, yes, we should be helpful to others, but use comma after yes. Once there was an old man who lived in a forest. He lived there all alone in a small hut. He was thin, lean, and in rags. He was thin, lean, and in rags, but was very kind and noble. He always liked to help others. He always liked to help others. One night, there came a terrible storm. Terrible storm in the forest. One night there came a terrible storm in the forest, followed by heavy rain. There are two important words here, terrible and followed. The old man was busy in his work when he heard a knock at the door. The old man was busy in his work when he heard a knock at the door. My dear viewers and my dear watchers, there is raining outside, so might be there is a little bit interruption in the audio. So pardon me, because I am extremely sorry. Weather problems in Pakistan are usually available, but I'll try my best to give you the best audio. The old man was busy in his work when he heard a knock at the door. He opened the door, and there stood before him a gentleman who spoke to him thus, in African and in Nigerian, thus in Pakistani, in Indian, in old subcontinental or in international, it usually use thus, but I use it particularly thus, according to African pattern and according to Nigerian pattern. As I was a former teacher of Britishism, their online tutor in Africa and in Nigeria, so during my teachers training session, I got this because I'm having problem to pronunciate thus, so I use it. I don't use it thus, I use it thus.
Thus, Sir, I'm a hunter. Sir, I'm a hunter. I came to the forest to hunt, but due to but due to but due to but due to this storm and the heavy rain, it is not possible for me to hunt. I cannot go back either. I'm looking for shelter. I'm looking for shelter. I shall be grateful if you could let me spend the night here while reading. What do you understand by the words hesitation? I will hesitation mean particularly have some sort of frustration or have some sort of hesitating or have some sort of compulsion or unappropriate manner to accept or accept someone or to reject someone in that situation. The pious old man without any hesitation asked him to step in. He gave him a towel to dry himself. He gave him a towel. It is usually used as a towel in our Pakistani accent. He gave him a towel to dry himself. He then gave him a cup of hot milk to drink. The hunter looked around. It was a small hut with one small bed. Only one person could sleep on it. Only one person could sleep on it. Sir, this is a very small hut and there is hardly room for two. How are we going to spend the night here, the two of us? said the hunter. The pious old man said, True, this is hut. This hut is small. Very small indeed. But if one has the will, one can manage. If one has the will, one can manage. The hunter was satisfied with this answer. He started drinking the milk. There was another knock at the door. This time it was even louder. The old man opened the door. Now it was a farmer asking for shelter. Ask student to use punctuation cues while reading. I give you a particular model lesson, or particularly model spoken and particularly model narration about the page number 11. So now we are going to discuss it particularly in Urdu for our Urdu medium teachers. Pre-reading strategies. मुअज़्ज़ज़ साथिया इकराम, प्री रीडिंग स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि इन पॉइंट्स के ज़रिए से बच्चे के जहन के अंदर ये कॉन्सेप्ट बिठाना कि इस कहानी के अंदर क्या बात की जा रही है, या ये कहानी किस चीज़ के मुतल्लिक़ है, या ये सबक किस चीज़ के मुतल्लिक़ है, और उन मुतल्लिक़ात को बच्चे के जहन में बिठाना होता है। अब यहाँ पर दो पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट ये है, लुक एट द टाइटल। देखिए, प्री रीडिंग का मतलब है जी पहले से, पढ़ने से पहले की जो है ना वो रीडिंग। लुक एट द टाइटल के ऊपर देखिए आप द यूनिट के एंड गिवन, और दीजिए इलिस्ट्रेशन टू प्रेडिक्ट, पेशीन गोई के लिए व्हाट द टेक्स्ट इज़ अबाउट, के जो है वो टेक्स्ट किसके बारे में है। जैसे हमारा जो मेन टाइटल था, यानी टाइटल क्या था इसका, वर्चू। लेट मी चेक दैट टाइटल, मुझे एकदम से उसका जो है ना वो, हाँ जी, हमारा टाइटल था यूनिट नंबर 2 का, अ ग्रेट वर्चू। ठीक है जी। तो अब ग्रेट वर्चू क्या इसके साथ जो है वो कनेक्ट होता है,
अब अगर यूजुअली आप देखें तो एक हट है, एक छोटा एक बूढ़ा आदमी है, तो उसके साथ वो कनेक्ट नहीं होता। लेकिन जब आप पॉइंट 2 को देखेंगे तो उसके साथ फिर जो है वो बच्चों के जहन के अंदर एक, चूँकि ये 8वीं क्लास के बच्चे हैं या प्री 9th के बच्चे हैं, तो ये बात जहन में रखिएगा कि ये नियर टू अडल्ट हैं। तो इस वजह से जो है ना वो एटलीस्ट ये अगर इनकी जो है ना वो अभी टीनेज स्टार्ट नहीं हुई तो नियर टू अडल्ट हैं, और या नियर टू टीन ये बनने वाले हैं। तो आई होप सो। अब पॉइंट नंबर 2 है इसके अंदर है, डू यू थिंक, क्या आप ख्याल करते हैं दैट वी शुड हेल्प अदर्स, हेल्पफुल टू अदर्स, कि हमें दूसरों के लिए जो है ना मददगार या रज़ाकार रहना चाहिए। असल लफ्ज़ रिज़ा होता है और रज़ा हमारे यहाँ गलतुल-आम है, तो रज़ाकार या मददगार जो है वो रहना चाहिए। तो इसका जवाब जो है ना वो मैंने आपको बताया कि जी हाँ। और आप बच्चों को जो है ना जुमला देने के लिए कि डू यू थिंक काट दें, उसके बाद वी शुड बी हेल्पफुल टू अदर्स और आगे से सवालिया निशान काट दें, यस के बाद कॉमा लाजमी लगाना है। तो ये आपका इसका जो है ना प्री रीडिंग स्ट्रेटजी का बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब तर्जमा करते हैं और साथ साथ मैं जो है ना वो वर्बल और स्पोकन और नरेशंस के रिलेटेड मैं चीज़ें बताता जाऊँगा। वंस में ओ कैपिटल क्यों आया है, क्योंकि हम जुमला स्टार्ट कर रहे हैं और उसके पीछे हमने एक टैब की जगह खाली छोड़ी है, वो लिखने का स्टाइल है। बीइंग अ राइटर मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि आपने एज अ राइटर जो है तो, और उसके बाद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बच्चे को आपने मतन में से जब चीज़ें समझा देनी है तो वो लिखते वक्त इनको अच्छा बच्चा 100% कॉपी करेगा, तो वो इम्तिहान के अंदर भी आपको उसको बार बार चीज़ें जो है ना वो नहीं समझानी पड़ेंगी। वंस देयर वाज एन ओल्ड मैन, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बूढ़ा आदमी था। हु लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, जो जंगल में रहता था। लिव्ड सेकंड फॉर्म है और फॉरेस्ट जंगल को कहते हैं। ही लिव्ड देयर ऑल अलोन, वो वहाँ पर तने तनहा या अकेला, मुकम्मल अकेला रहता था या तने तनहा रहता था। इन अ स्मॉल हट, एक छोटी सी झोंपड़ी में। हट कहते हैं झोंपड़ी को, स्मॉल छोटी। ही वाज थिन, वो पतला सा था। लीन, झुका हुआ था, यानी बूढ़े बूढ़े की बात की जा रही है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों को बता सकते हैं कि बेटा जैसे बुज़ुर्ग होते हैं तो वो उनकी कमर झुक जाती है। एंड इन रैग्स, और चीथड़ों में मलबूस था। रैग्स कहते हैं जी चीथड़ों को। चीथड़ों का मतलब ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो टाकियाँ या मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना कपड़े के टुकड़े जोड़ कर तो एक लिबास बना लेना। बट वॉज़ वेरी काइंड, लेकिन बहुत ही रहम दिल था। एंड नोबल, और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ या शरीफ। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने बताना है कि एक तरफ उसने चीथड़े पहने हुए हैं और दूसरी तरफ वो मुअज़्ज़ज़ कैसे हो गया। तो यहाँ पे आपने बच्चे की किरदार साजी के ऊपर मेहनत करनी है कि बेटा बहुत अच्छे लिबास के अंदर एक शैतान हो सकता है और किसी चीथड़ों वाले लिबास के अंदर एक जो है वो अल्लाह का वली हो सकता है। ही ऑलवेज़, और यहाँ से आपने बच्चों को थोड़ा सा ग्रूम करना है कि बेटा हमेशा खुश लिबासी के साथ अपनी खुश किरदारी की तरफ या अच्छे किरदार की तरफ भी ध्यान रखना है। ऑलवेज़ लाइक्ड टू हेल्प अदर्स, ही ऑलवेज़ लाइक्ड, वो हमेशा जो है ना वो पसंद करता दूसरों की मदद करना। वन नाइट, एक रात। देयर केम अ टेरिबल स्टॉर्म। अच्छा, टेरिबल यहाँ पर जो है ना वो ये इस वक्त जो है वो एडजेक्टिव है, और उसके साथ साथ हम इसको टेरिबल का माना होता है जी बहुत ज़्यादा खौफनाक, और स्टार्म का मतलब होता है तूफ़ान। इन द फॉरेस्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ। वन नाइट देयर केम अ टेरिबल स्टॉर्म, एक रात वहाँ पर एक बहुत शदीद जो है वो या खौफनाक तूफ़ान आया। फॉलोड बाई, जिसके साथ थे। ये फॉलोड की जगह पे जब हमने ये सबक पढ़ा था तो एकम्पनीड बाय होता था, तो इसकी जगह पे उन्होंने जो है ना, तो मैं टीचर्स के लिए ये बता रहा हूँ कि एकम्पनीड ज़्यादा खूबसूरत वर्ड था, तो वो चूँकि बच्चों के लिए जो है ना 8वीं क्लास के बच्चों के लिए मुश्किल होता था, तो उसकी जगह पे इन्होंने जो है ना फॉलोड कर दिया है। मेरे पास काफ़ी अर्सा जो है ना मेरी अपनी पुरानी किताबें जो है वो मौजूद रही हैं, तो उनके अंदर अब भी आपको किसी जो है वो स्टोर से अगर पुरानी 8वीं की किताब मिले PTB की, तो कोई 30-35 साल पुरानी, तो उसके अंदर एक कंपनीड बाई होगा, आप उसको देख सकते हैं। तो कंपनीड बाई हो तब भी, फॉलोड बाई हो तब भी, इसका मतलब है कि साथ। हैवी रेन, और उस तूफ़ान के साथ जो है ना शदीद बारिश भी थी। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, वाज बिज़ी, मसरूफ़ था। इन इज़ वर्क, अपने काम के अंदर। व्हेन ही हर्ड अ नॉक एट द डोर, जब उसने देखी, या सॉरी जब उसने सुनी
एक दस्तक दरवाज़े के ऊपर। जब उसने सुनी दस्तक दरवाज़े के ऊपर, ही ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला, एंड देयर स्टूड बिफोर हिम अ जेंटलमैन, उसके सामने एक जो है वो काबिल इज़्ज़त आदमी या जेंटलमैन, एक अच्छा आदमी जो है वो खड़ा था। हु स्पोक टू हिम, जो उससे बोला, टस सर, मोहतरम सर, आई एम अ हंटर, मैं एक शिकारी हूँ। आई केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, मैं जंगल में शिकार के लिए आया। बट ड्यू टू दिस स्टॉर्म एंड द हैवी रेन, लेकिन इस तूफ़ान और शदीद बारिश की वजह से, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है, टू हंट, कि मैं शिकार कर सकूं। अच्छा, यहाँ पे मी की जगह पे माई सेल्फ क्यों नहीं आया, ये जहन में रख लीजिए। अगर यहाँ पर स्पोकन वैल्यूज़ को सामने रखेंगे तो मी आएगा, चूँकि रोज़मर्रा के अंदर जो है वो अंग्रेज़ मी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप लिटरेरी इंग्लिश को सामने रखेंगे तो यहाँ पे माई सेल्फ आना चाहिए। और ये मैं टीचर्स के लिए आपको नुक्ता दे रहा हूँ कि जो है ना, ज़रूरी नहीं कि आप इसको बच्चों को बताएं, लेकिन बता भी दें तो 8वीं क्लास के बच्चे हैं तो ज़ाहिर है आगे जाके 9th-10th में वो लिटरेरी एस्पेक्ट्स को जानेंगे ही। तो लेकिन मैं टीचर्स के लिए रीज़न और लॉजिक ये दे रहा हूँ। आई कैन नॉट गो बैक आइदर, लिहाजा मैं वापस भी नहीं जा सकता। आई एम लुकिंग फॉर शेल्टर, मैं पनागाह की तलाश में हूँ, या जो है रात गुजारने के लिए, जहाँ पर मुझे जो है वो तूफ़ान से बचने के लिए कोई जो है वो पनागाह या कोई बचाव वाली जगह मुझे मिल जाए। आई शैल बी ग्रेटफुल, मैं बहुत जो है ना वो शुक्रगुजार होऊंगा। इफ़ यू कुड। अच्छा, यहाँ पर एक और गलती जो है वो टीचर तर्जमा के अंदर करते हैं। मशकूर याद रखिएगा कि मफ़ूल के वज़न पे होता है, और मफ़ूल और मशकूर वो होता है जिस पर काम किया जाए, ठीक है। और फ़ाइल होता है काम करने वाला। तो मशकूर को जो है ना वो फ़ाइल की जगह पे जो है वो ठोंस दिया जाता है या धौंस दिया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी जगह पे आप लिखेंगे, हमेशा याद कर लें, मैं मशकूर हूँ, ये गलत है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। और राइटर गिरी करते हुए अगर आप इसको जुमले को दुरुस्त करना चाहें तो फिर कर सकते हैं, आप मेरे मशकूर हैं, क्योंकि मफूल के वज़न पे है ना, यानी वो जिसका आपने शुक्रिया अदा किया। अच्छा जी, शैल बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड लेट मी स्पेंड द नाइट हियर, अगर आप मुझे यहाँ पर रात, आई शैल बी ग्रेटफुल, मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। इफ़ यू कुड लेट मी स्पेंड, अगर आप मुझे गुजारने दें द नाइट हियर, यहाँ पर रात। द पाइस ओल्ड मैन, पाकीज़ा परहेज़गार, ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, विदाउट एनी हेजिटेशन, बगैर किसी हिचकिचाहट के, आस्क्ड हिम टू स्टेप इन। स्टेप इन जो है वो ईडियम है, ये याद रख लीजिए। और बच्चों को ईडियम के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि दरबुल अमसाल होते हैं, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मिलकर एक माना या जुमला और बनाते हैं, और कंपाउंड वर्ड होता है ये अमूमी तौर पे। अंदर तशरीफ़ लाइए, ही गेव हिम अ टॉल, ये हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी एक्सेंट के अंदर टावल जो बोल दिया जाता है उसकी जगह पे टॉल, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि डब्लू जो है वो करीब करीब जो है वो हाफ जो है वाउल की तरफ जाता है, और इसके बाद ई फिर वाउल आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से, और पीछे ओ भी वाउल है, तो आधा जो है वो उसका वाउल और पीछे वाला वाउल और वो, तो अब आप इसको थोड़ा सा लंबा करके जो है ना वो पढ़ेंगे टॉल, ना कि टावल, ठीक है। इसमें वी वाली जो है ना वो फीलिंग आप नहीं देंगे। टू ड्राई इट हिमसेल्फ, उसको खुश करने के लिए उसने तौलिया दिया। ही देन गेव हिम अ कप ऑफ हॉट मिल्क, फिर गर्म दूध का एक कप दिया टू ड्रिंक, पीने के लिए। द हंटर लुक्ड राउंड, शिकारी ने इर्द गिर्द देखा। इट वाज अ स्मॉल हट, ये एक छोटी सी झोंपड़ी थी। विद वन स्मॉल बेड, एक छोटे से जो है वो बिस्तर के साथ। ओनली वन पर्सन कुड स्लीप ऑन इट, सिर्फ एक बंदा उस पर बमुश्किल सो सकता था। कुड हम इसलिए लगाते हैं ताकि उससे हमें पता चल सके कि इसके अंदर बमुश्किल की कैफियत पाई जा रही, और यहाँ पर ये इसलिए आ रहा है। ये जो है वो जब मैंने आपको आफाक इकबाल सीरीज़ की जो है ना वो 5वीं 6वीं और 7वीं के लेक्चर्स जो है वो पढ़ाए थे, तो उनके अंदर मैंने आपको नॉट ओनली बट आल्सो, और ये स्ट्रेटजीज़ जो है ना कंडीशनल जितनी भी पढ़ाई हैं उनके अंदर भी तफसील से मैंने आपको ये समझाया हुआ है, और वो लेक्चर्स आप लाजमी सुने ताकि आपकी टीचिंग पेडागोजी बेहतर हो सके। उसके बाद सर, दिस इज़ अ नाइट हियर
हार नहीं पढ़ना, इसको हियर पढ़ना है। द टू ऑफ अस, हम में से दो, सेड द हंटर, हंटर ने कहा, सॉरी एक लाइन मैंने छोड़ दी है, हार्डली सर दिस इज़ अ वेरी स्मॉल हट, ये बहुत छोटी सी झोंपड़ी है, एंड देर इज़ हार्डली रूम फॉर टू, और बमुश्किल जगह है दो लोगों के लिए, यहाँ पे रूम जो है वो जगह के लिए आया। हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट हियर, हम यहाँ पर रात कैसे गुजारेंगे। द टू ऑफ अस, हम में से दो, सेड द हंटर, शिकारी ने कहा, द पाइस ओल्ड मैन सेड, बुज़ुर्ग परहेज़गार आदमी ने कहा, बूढ़े ने कहा, ट्रू, दुरुस्त है, दिस हट इज़ स्मॉल, कि ये झोंपड़ी छोटी है, वेरी स्मॉल इंडीड, बल्कि दर हकीकत बहुत छोटी है, बट इफ़ वन हैज़ द विल, अगर किसी की मंशा, रिज़ा या रज़ामंदी या चाहत हो, विल वन कैन मैनेज, तो जो है वो इसको मैनेज या इसका इंतज़ाम व इंसराम किया जा सकता है या ये काम हो सकता है। द हंटर वॉज सेटिस्फाइड, हंटर जो है वो मुतमईन हो गया, विद द आंसर, जवाब के साथ, ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग द मिल्क, उसने जो है वो दूध पीना शुरू कर दिया। देयर वाज अनदर नॉक एट द डोर, एक और जो है वो दस्तक होती है दरवाज़े पर। दिस टाइम इट वाज इवन लाउडर, कि अब ये ऊंची होती है। अच्छा, लाउडर के अंदर जो है लाउडर की पिच भी आनी चाहिए, लाउडर, ठीक है जी। तो यानी आवाज़ जो इसम ब मुसम्मा होना चाहिए कि लफ्ज़ के अंदर पता चले कि ऊंचा बोलने की बात हुई दिस टाइम, और ये पहले से जो है ना ऊंची थी। द ओल्ड मैन ओपन द डोर, बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला। नाउ इट वाज अ फार्मर, वहाँ पर एक किसान खड़ा था। आस्किंग फॉर शेल्टर, पनाहगाह की तलाश में, और या पनाह के लिए जो है वो गुजारिश करते हुए। और नीचे टीचिंग स्ट्रेटजी है जी, आस्क स्टूडेंट्स टू यूज़ पंक्चुएशन क्यूज़ वाइल रीडिंग। ये मैं पहले भी जो है ना तफसील से आपको बता चुका हूँ कि आपको मॉडल लेसन जो है ना वो रीड करके दिया है और आपके सामने बयान किया है, तो मुझे उम्मीद है आप इसको इसी जब रुख पे करेंगे तो ये ख़ुद ब खुद जो है ना वो अदा हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं तारफ़ करवाता चलूँ कि हमारे नए कोर्सेज़ जो है वो लॉन्च हो चुके हैं, जिसके अंदर जो है ना टीचर्स के लिए ढेर सारे जो है वो चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ मैंने ये भी जो है ना वो कई दफ़ा जो है अनाउंस किया है कि उर्दू की सर्विसेज के लिए हमारा चैनल मुर्शिद उर्दू प्रोफेसर एम ए रज़ा है, और इस्लामियात और क्लासिकल इस्लामिक साइंसेज और लॉजिक और मुख्तसर निसाब फ़िक्ह सीरीज़ के लिए हमारा जो चैनल है वो जामे दारुल शेखुल इस्लाम है। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए मेरे साथ मिलकर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए, तालीम और तरबियत के लिए एक कदम और। लेट मी गो नाउ एंड से विद मी, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी, डू समथिंग more for knowledge and practices. Have a good day.